Thank you, Lord. Thank you, Lord. We welcome you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के सुंदर नाम में आपका हम स्वागत करते हैं। It's a great day from the Lord, प्रभु की ओर से एक सुंदर दिन, and we believe that God is going to answer our prayers. और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को In सुनेंगे। the world of Jesus, there is no discouragement. यीशु मसीह की दुनिया में कोई निराशा नहीं। Every mind that is blind will be opened by the blood of the Lamb. हर एक मन जो अंधा है वो खुल जाएगा मेमने के लहू So I के thank द्वारा। God, those who are watching, they are emotionally healed, and internal damages have been healed completely by the blood of और Jesus. धन्यवाद है तो कि जो भी हमें देख रहे हैं, तुम्हारे अंदरूनी भीतरी जो दर्द था वो सब चंगाई पाया है यीशु के नाम Hallelujah. में। One of the favorite topics, I'll be speaking on this. एक बहुत ही मनपसंद विषय है, इसके विषय में सिखाना It is पड़ेगा। about the blessing and curses. आशीषें और श्राप। You know, our family have left the legacy, not the good thing, but the curses in our lives. तो हमारे परिवार के हमारे बाप दादों ने हमारे लिए विरासत रखा है, वो अच्छी चीज नहीं रखी है, लेकिन वो श्रापों That को छोड़ because दिया of है। the legacy of sin that they have left, today many are suffering. और क्योंकि उन्होंने वो जो पाप का जो विरासत हमें छोड़ा है, इसलिए आज हम तकलीफ झेल And रहे this हैं। night, God wants to change your DNA to the legacy of our Lord Jesus Christ. आज की रात प्रभु तुम्हारे डीएनए को बदलना चाहते हैं मसीह के इसमें। And I believe that every time when our people have left the legacy, we are all suffering because of their wrong legacies. और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हमारे लोग जब तकलीफ झेल रहे हैं या कोई दुख सह रहे हैं, तो फिर वो उनके लेगेसी विरासत के कारण What वो is the छोड़ legacy they have left? Family legacies, illness, तो कौन सा विरासत है जो छोड़ा है? वो बीमारी, attitudes, उनका स्वभाव behavioral characteristic problems. और उनके बर्ताव चाल चलन। And these are the things that is passing from generation to generations. तो ये बातें हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुजर रहा है। Hallelujah. And that's what many people are suffering today. इसीलिए बहुत लोग आज तकलीफ झेल रहे So हैं। that's what many people are not enjoying the fullness of God. इसलिए बहुत लोग हैं जो प्रभु के बहुतायत का आनंद नहीं उठा पा So रहे हैं। before I tell you what is curse, श्रापों को विषय में पहले बताने से पहले we need to understand why the curse is. तो हमें ये समझना जरूरी कि श्राप क्यों। Okay. Now if you read Exodus chapter 20 verse 5, अगर निर्गमन का 20:5 आप पढ़ोगे, I the Lord thy God am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation of them that hate Jesus, hate God, hate me. और मैं जो तुमसे प्रेम रखता हूँ और आज्ञा नहीं मानने वालों को उन हजारों करुणा किया करता हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता Now हूँ। it is a two sides of coin. अभी एक सिक्के का दो भाग है। The Lord is saying, I am a jealous God, प्रभु कहता है कि मैं जलन का ईश्वर हूँ, visiting the iniquity of your fathers. तेरे पितरों का अधर्म को मैं देखता हूँ। Hallelujah. And if God finds any iniquity in their family, और प्रभु यदि एक परिवार में कोई अधर्म पाते हैं, He will be visiting on the children's unto the third and the fourth generation. तो उनके बेटों पोतों और परपोतों के को भी वो दंड देते हैं, Those who hate God. जो प्रभु से Now, जलन how नफरत we करते hate हैं। God? We hate God when we break the commandments. तो हम प्रभु से नफरत कैसे करते हैं? जब हम उसके आज्ञाओं को तोड़ते We हैं, fall into iniquity. हम अधर्म में गिर जाते हैं। Okay, Deuteronomy chapter 7 verse 9, the other side of the coin. अभी हम दूसरी तरफ देखेंगे, सिक्के का दूसरा भाग। Now therefore that the Lord thy God is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to 1,000 generations. इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता Now, है। that's what I'm saying. Blessing and curse are the two sides of the coin. इसलिए मैं कहता हूँ कि आशीष और श्राप ये सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। Hallelujah. Other side of the coin, who hate God,
and fall into iniquity, God is putting the curses on the 4 एक generations. तरफ हमने देखा सिक्के का कि अगर कोई परमेश्वर से घृणा करता है और उसकी आज्ञाओं को तोड़ देता है तो वो कैसे श्रापों में गिर जाता And है, the other side of the coin is blessings. और दूसरे तरफ मैंने आशीषों को Because देखा, our God is a faithful God. क्योंकि हमारे प्रभु जो है विश्वास योग्य परमेश्वर You है, know, whoever keeps the covenant, जो भी उसके वाचाओं को रखता and है, also God keeps the covenant. तो प्रभु भी अपना वाचा रखता You है। know, He is a God with mercy. वो दयालु ईश्वर है And He love and keeps His commandments for 1,000 generations. और वो हमसे प्रेम रखते हैं और करुणा वो है 1000 पीढ़ी तक रखते हैं। So you want to be blessed or cursed, you need to decide. तो अभी तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम आशीष में रहना चाहते हो, Do श्राप you में। want your children to be blessed? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे आशीषित रहे, You know, nothing should touch their lives. कि उनके जीवन को कुछ भी न छुए? You need to give place to God in your life. तो तुम्हें प्रभु को अपने जीवन में जो है स्थान देना You जरूरी as a है। parent, you need to open your life, God to come in and bless your life. तो तुम एक माता पिता होने के नाते तुमने जो है परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलना है कि आकर तुम्हारे जीवन में आशीष Now दे। listen, when you give place to God in your life, जब तुम प्रभु को अपने जीवन में आशीष जगह देते हो, you're bringing blessing for yourselves. तो अपने लिए आशीषों को मांगते हो। But if you're giving the place to the devil, लेकिन यदि शैतान को जगह देते हो, if you're giving the place to the devil, you're under generational curse. अगर तुम शैतान को जगह दे रहे हो यानी तुम पीढ़ी से आने वाले श्रापों के अंदर Meaning हो। you're asking your children to live in the curses. यानी तुम अपने बच्चों को कह रहे हो कि तुम भी श्राप में ही रहो, Hallelujah. And the devil wants to devour them. और शैतान उन्हें खाना चाहता So है। that is what you need to understand. तो यही बात तुम्हें समझना जरूरी Now है। all the viewers, I'm telling you, I'm speaking from the Bible. अभी जो मुझे देख रहे हैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ पवित्र शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ। And maybe I may be touching what the Bible says, but don't be offended if you don't know the Bible. I'm talking to the believers. I'm talking to the Christians. अभी ये जो मैं आज अभी सिखा रहा हूँ वो केवल विश्वासियों के लिए, मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए है। तो बाकी के अगर कोई लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल बुरा ना मानना जो मैं सिखा रहा Don't हूँ, be get offended what I'm teaching you. क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें बिल्कुल बुरा नहीं I'm मानना। teaching from the Bible. मैं पवित्र शास्त्र में से What सिखा रहा हूँ। our Bible teaches, I'm teaching to our people. तो जो हमारा बाइबल सिखाता है उसमें से मैं हमारे Because लोगों there को are मैं सिखा certain रहा हूँ। areas idolatry comes. There are certain areas black magic comes. Some people are doing the black magic. Some people are worshipping the idols. My Bible is against for that. So I'm teaching Bible to my people. तो अगर ऐसी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे लिखा है कि काला जादू या जादू टोना नहीं करना है, तो मैं ये बातें सिखाऊंगा, ये मेरे लोगों के लिए मैं सिखा रहा हूँ, And that is from my Bible. और वो मेरे बाइबल में से What है, God has taught me from the Bible. जो प्रभु ने मुझे बाइबल में से सिखाया So है। if you are for the first time, never get offended for all अगर आप this. पहले बार देख रहे हो तो बिल्कुल इस बातों का बुरा नहीं And मानना। I'm not talking about you, not talking about your gods. I'm talking about what Bible is speaking. मैं आपके बारे में या आपके देवताओं के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाइबल जो बताती है वो मैं बताती हूँ। Okay, I'm clear about this. तो मैं इस बात में क्लियर हूँ। Okay, now blessing and curse. We need to understand. I told you it is sides of the two coins, two sides of the coin. मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे आशीष और श्राप वो सिक्के के दो अलग पहलू हैं। One side God is visiting. एक तरफ प्रभु भेंट करने आते हैं, Those who hate him, he will bring the curses upon them. और जो उसे घृणा करते हैं उनके पर वो श्राप है And their आता life है। will finish with 4 generations. 4 पीढ़ियों में उनका पीढ़ी खत्म। And you know, and again we see the other side of the coin. और हम देखते कि सिक्के का दूसरा भाग, You know, God is visiting the generations. प्रभु पीढ़ियों को मुलाकात करते हैं। Because one who keeps his commandments, he will bless them for 1,000 generations. जो उसके वाचा को मानते हैं या पालते हैं उन्हें वो उनको पर वो 1000 पीढ़ियों तक करुणा So my दिखाता है। question, if you want to be blessed, सवाल ये है कि अगर तुम आशीषित बनना if you चाहते want your children to be blessed, अगर चाहते कि तुम्हारे बच्चे आशीषित if you रहें, want nothing, the things of this world or the devil should not touch your children. अगर तुम चाहते कि संसार की चीजें या शैतान कुछ भी तुम्हारे बच्चों को न छुए, It happens only when you give first place to God in your life. ये कब होगा? जब तुम प्रभु को ही पहला स्थान अपने जीवन में दोगे। That is how blessings comes in your life. तो उसी रीति से आशीषित That तुम्हारे is how जीवन you're में, opening the door for blessings to your children's life. तो तुम्हारे बच्चों के जीवन के लिए भी तुम दरवाजा खोल रहे हो आशीषों का। But if you don't want to open the door for God,
अगर तुम प्रभु के लिए दरवाजा नहीं you खोलना are opening चाहोगे the door for the devil, तो तुम शैतान के लिए दरवाजा and खोल you रहे are under a generational curse. हो। और फिर तुम वंशों से आने वाले श्राप के अंदर आते You're हो asking for your children to enter into the same curse once you were in. और जो श्राप से तुम गुजरे हो वही श्राप में तुम कहते हो कि मेरे बच्चे भी उसी से And the devil will devour your children. तो शैतान तुम्हारे बच्चों के ऊपर फिर आक्रमण करेगा। So what God's plan for us? तो प्रभु की योजना हमारे लिए क्या है? According to Galatians chapter 3 verse 13 and 14, गलतियों का 3, 13 और 14 के अनुसार we are redeemed from the curse to receive the blessings of Abraham. तो हम सारे श्रापों से मुक्त हो गए ताकि हम अब्राहम के आशीष में रहें। I want to repeat this one. We are redeemed from the curse to receive the blessings of Abraham. तो हम सारे व्यवस्था के सारे श्राप से छुड़ाए हुए हैं और हम अब्राहम के आशीषों में हैं। Verse 14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम श्राप से छुटकारा पाएं। Okay, and for it is written, cursed is everyone who hung on the tree. जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। Now listen. व्यवस्था यह कहता है। Now Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. तो यीशु मसीह देखो व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लेकर छुड़ाया है। Hallelujah. God was visiting. देखो प्रभु In the law, God was visiting. व्यवस्था के समय भी प्रभु मिलने जा रहे थे, मुलाकात कर रहे थे He लोगों took the से। law उसने व्यवस्था ली and is coming to your family. और तुम्हारे परिवार में आते If हैं। you're not walking according to the law, अगर इस व्यवस्था के अनुसार तुम नहीं चलते हो so he is pronouncing the curse for the 4th generation. तो 4 पीढ़ियों के लिए वो फिर श्राप घोषित Now करते हैं। God changed the plan. अभी प्रभु प्लान बदलता है। God sent his son. प्रभु ने अपने बेटे को भेजा, God sent his son Jesus Christ अपने बेटे यीशु मसीह को to भेजा redeem us from the curse of the law. ताकि हम उस व्यवस्था के श्राप से छुटकारा पाएं। Hallelujah. So that in the place of us, he took the curse. इसलिए हमारे स्थान पे यीशु मसीह ने वो श्राप अपने ऊपर He लिया, hung on a tree. One who hung on a tree is cursed. क्योंकि वो जो काट पर लटकाया गया वो श्रापित है। And verse 14, the Bible says, वो 14 वचन कहता है, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ. और इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को So that by faith we might receive the promise of the Spirit. ताकि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। Now listen to me. We are redeemed from the curse देखो हम श्राप से छुटकारा पाए, to छुड़ाए receive the गए blessings of Abraham. ताकि हम अब्राहम के आशीषों को So पाएं। how can we receive the blessings of Abraham? तो अब्राहम के आशीषों को हम कैसे पाएंगे? Jesus came in the middle. यीशु मसीह बीच में आए। By ourselves we cannot receive the blessings of Abraham. देखो हम खुद से अपने अब्राहम के आशीषों को नहीं But पा our सकते, people who left the legacy is only sin, failures, sickness, क्योंकि हमारे diseases. लोगों ने जो विरासत में हमें छोड़ा है वो केवल पाप है, हार है और रोग है। Now here comes Jesus Christ, the Son यहाँ of the पर living यीशु God. मसीह आते हैं जो जीवित परमेश्वर के पुत्र He हैं। redeemed us from the curse by going on the cross. तो उसने हमें सारे श्रापों को से छुड़ा दिया क्रूस पर He चढ़कर। died on the cross. वो क्रूस पर मरा, You know, he exchanged our curse was upon him, his blessing came upon our lives. देखो हमारे सारे श्राप उसके ऊपर आए और उनकी आशीष हम पर आई। And that's what the Bible says, the Abraham's blessings was given through Jesus Christ to us. तो इसलिए वचन कहता है कि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची। So by faith we are receiving the promise of the Spirit. तो इसलिए विश्वास के द्वारा हम आत्मा को प्राप्त करते हैं। Hallelujah. This is all the base I am putting for you. ये सारी नींव अभी डाल रहा हूँ। Now what is curse? श्राप क्या है? What is a curse? तो श्राप होता क्या है? Hallelujah. Anything that is not blessing is a curse. जो कुछ आशीष नहीं है वो श्राप है। Many Christians they believe, बहुत मसीह लोग विश्वास करते हैं, you know, when we accept the Savior as our personal Jesus as our personal Savior, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं the curse is automatically broken.
तो श्राप ऑटोमेटिकली टूट जाता है। Uh-huh. Okay, fine. A person living under a curse एक व्यक्ति जो श्राप के अंदर है will have the following symptoms, whether his curse is broken or not. अगर उसके श्राप टूटे हैं या नहीं है, लेकिन वो लक्षण है उसके। Okay, number 1. पहला Leviticus chapter 20 verse 6. ले व्यवस्था 20:6 You know, breakdown of relationships. रिश्तों का या संबंध में टूटना। 2 Kings chapter 9 verse 22. दूसरा राजा 9:22 You know, absence of peace. शांति निकल जाती है, You know, lack of success. सफलता नहीं बिल्कुल। Hallelujah. Many people, they see initial prosperity when they come to the Lord. कुछ लोग हैं जो उन्नति या सफलता देखते हैं जब वो प्रभु में पहले आते For हैं। certain period, they are successful. कुछ थोड़े समय के लिए वो सक्सेसफुल यानी And सफल after रहते some हैं, time, they lose everything. और कुछ समय के बाद वो सब कुछ खो देते They हैं। lose their position. वो अपना पोजीशन खोते They lose हैं, their finances. अपना फाइनेंस खोते हैं। You know, if you read in 1 Chronicles chapter 10 verse 13, the example of Saul. अगर सौल का उदाहरण देखेंगे तो पहला इतिहास में So I want to tell you, Saul lost his peace. देखो सौल ने अपनी शांति खोई, He lost his position. उसका स्थान खोया, You know, he was totally, gone astray. वो पूरी तरह से भटक गया You था। all know the story. I don't want to get into that story. आप सब इस कहानी को जानते हैं और मैं उसमें नहीं बताऊंगा। People go through life not knowing why they are facing such problem. तो लोग अपने जीवन में ऐसे स्थितियों से गुजरते हैं और नहीं जानते ऐसे क्यों हो रहा है। According to Proverbs 26:2, नीति वचन 26:2 के अनुसार it's all undeserved curse does not come to rest. और कोई भी श्राप बिना वजह का नहीं आता है, That means there is a reason for the curse. यानी कोई कारण है श्राप के If लिए। you say that when I come to the Lord the curse is broken, no, when you come to the Lord you got the salvation for your soul, your spirit. अगर तुम कह रहे हो कि मैं प्रभु में आने के बाद मेरे सारे श्राप टूट गए, नहीं, प्रभु में आने के बाद तुम्हें केवल उद्धार प्राप्त हुआ There है। is a cause for the curse that is to be rectified and it has to break. यानी ये श्राप का कोई कारण है जिसके वजह से आया है, पहले उसे पहचानना जरूरी है, फिर उसको तोड़ना जरूरी You है। came, you got saved, तुम आए, फिर तुम्हारा उद्धार हुआ, then still there is an emotional attachment to your family where they have left the legacy of sin and the iniquity into your lives. लेकिन भावुक रूप से अभी भी तुम भावनात्मक रूप से तुम्हारे परिवार के साथ में जुड़े हुए हो और उन्होंने वो पाप को जो विरासत में तुम्हें दे दिया है वो अभी भी तुम्हारे अंदर है और उसे टूटना जरूरी है। Now cause of the curses, number 1 is idolatry. तो पहला श्राप का कारण क्या है? मूर्ति पूजा। Exodus chapter 20 verse 3 निर्गमान 20:3 and Exodus chapter 34 verse 14 और निर्गमान 34:14 and Deuteronomy chapter 32 verse 16. व्यवस्था विवरण 32:16 1 Corinthians chapter 10 20 to 21 पहला कोरिन्थियों का 10, 20 और 21 and 2 Corinthians chapter 6 verse 16. दूसरा कोरिन्थियों का 6:16 All this scripture says agreement with the temple of God. और यानी ये सारे वचन ये बताता है कि परमेश्वर के मंदिर के साथ में समझौता, The idolatry was entertained. यानी मूर्ति पूजा को So मनोरंजन किया। that's how the curse came on the land. इसीलिए पूरे जमीन पे जो है शाप आया, Curse came on the people. लोगों के ऊपर शाप That उतर is what आया। our Bible teaches us. हमारा पवित्र शास्त्र ये बताता And the है। second thing, the cause of the curse is mainly witchcraft. और एक श्राप आने का कारण है वो टोने के कारण। Galatians chapter 5 19-20. गलतियों का 5:19-20 And also you need to understand the consequence of the idolatry and the witchcraft. तो तुम्हें समझना जरूरी है ये मूर्ति पूजा और जादू टोने के नतीजे क्या हैं। Leviticus chapter 19 verse 31 says, ले व्यवस्था 19:31 ऐसा कहता do है, not turn to mediums or seek out spirits. Thank you. ओझों और भूत साधने वालों हाँ। को न फेरना। You know, do not seek mediums, turn to mediums or seek spirits, for you will be defiled by them. I am the Lord your God.
ओझों और भूत साधने वालों को की ओर न फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न होना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा Now, हूँ। what happens when you go to the idolatry and the witchcraft? अभी ओझों के पास या भूत साधने वालों के पास जब तुम जाते हो तो क्या होता You है? know, it defiles you, and God doesn't like it. You will come under a generational curses. और उनके कारण तुम अशुद्ध हो जाते हो और फिर परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं और तुम शाप के अंदर आ जाते हो। Okay, these are the introduction for you today. तो आज के लिए ये परिचय। Okay, now I want to talk about two families. One is godly family and one is cursed family. अभी मैं दो परिवार के बारे में बताऊंगा, एक है भक्त परिवार और दूसरा है वो श्रापित You परिवार। know, let me talk about the cursed family first. तो पहला मैं श्रापित परिवार के बारे में बताता The हूँ। cursed family, his name is two friends. They were the classmates. और दो दोस्त लोग थे जो क्लासमेट थे, एक क्लास में थे। One is Mac Jukes and another one is Jonathan Edwards. और एक था मैक जूस और दूसरा था जोनाथन एडवर्ड्स। And they were good classmates. वो अच्छे एक क्लासमेट They were थे, studied together. एक साथ में पढ़ाई लिखाई की But थी। there was a difference. One is a cursed family. Max Jukes was a cursed family, and Jonathan Edwards was a blessed family. ये मैक्स जूक्स था वो एक श्रापित परिवार से था और जोनाथन एडवर्ड्स था वो एक पवित्र एक भक्त परिवार से था, They were godly family. एक भक्त परिवार। Now let me tell you, when a person is under the curse, एक व्यक्ति जब श्रापों के अंदर है, you know, Max Jukes, root I want to give to you. Married after he left the school, he married to his wife. तो स्कूल से पढ़ाई के बाद अभी उसकी शादी हो जाती है। His wife was a godless woman. अभी जिस औरत से उसकी शादी होती है वो एक बहुत ही Godless. No कोई God. भक्ति नहीं थी उसके But अंदर। Max Jukes was an atheist. और मैक्स जूस एक नास्तिक था। Now listen, Max Jukes, Max, I'll call him Max, was atheist. मैक्स एक नास्तिक था And his wife, he got married to his wife, she was godless. और उसकी पत्नी तो जो बिल्कुल प्रार्थना करने वाली स्त्री नहीं So थी। this is a ungodly family. अभी देखो ये एक परिवार है जो बिल्कुल भक्त Now परिवार when नहीं। Jonathan got married, अभी देखो जब योनातान अब शादी करता they है, both were Christians. दोनों क्रिश्चियन थे। Now here there is a difference. यहाँ पे अलग बात थी। Max is an atheist मैक्स था वो नास्तिक था and wife is godless. और उसकी पत्नी बिल्कुल भक्त नहीं। Now out of them, the survey says 560 people were born. तो सर्वे ऐसा Generation, बताया कि उनकी जो descendants. पीढ़ी थी वो 560 लोग की पीढ़ी थी Out of 560 descendants, और 560 उनके जो पीढ़ी वंशावली में जो थे 310 died with paupers. 310 लोग ऐसा कंगालपन या दरिद्रता से ही मर गए, Hallelujah, pauper. They became paupers. No पूरी money. तरह से nothing. दरिद्र। Okay, 150 people in their family became criminals. 150 उनके परिवार के लोग केवल हत्यारे थे, 100 alcoholics. 100 शराबी, 7 murderers. 7 हत्यारे। More than of the women were in prostitution. आधा से ज्यादा जो औरतें थी उस परिवार के वंशावली में वो वेश्याएं थी। So Max Jukes, अभी मैक्स atheist, एक नास्तिक his wife godless woman. और उसकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल वो भी भक्त नहीं थी, भक्ति नहीं था Through उसके them अंदर। the generation was 560 descendants. उनके द्वारा जितनी उनकी वंशावली थी वो 560 लोगों की थी। Out of that 310 people died with pauper. उसमें से 310 लोग जो है वो मरे वो कंगाल या दरिद्रता से मरे। 150 died with criminals. 150 मरे वो हत्यारे थे। Hundreds were alcoholics. 100 जो थे वो शराबी थे। 7 murderers. 7 हत्यारे। More than of women were in these descendants were prostitutes. आधा से भी ज्यादा वो वेश्याएं थी, Oh my goodness. स्त्रियां। But descendants of Max, लेकिन जो मैक्स था उसके जो वंशावली they were the cost to US government. वो यूएस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही भारी पड़ा. भारी पड़ा। Hallelujah. More than $1.25 billion in 19th century. 19वीं शताब्दी में लगभग 125 मिलियन डॉलर जो है का खर्चा उनको उनके ऊपर You करना know, पड़ा। the government has to spend on them. गवर्नमेंट को उनके ऊपर खर्चा करना Means they पड़ा, were lost. यानी वो
घुम See, इतने this पूरी is- तरह से खराब। This is the power of generational curses. देखो ये जो पीढ़ियों से आने वाली जो श्राप है वो Why? उसका सामर्थ ऐसा This है fellow is an atheist. क्योंकि ये आदमी जो है वो नास्तिक है This पूरा। woman is a godless woman. What he got married. अब जिस औरत से भी शादी की वो भी नास्तिक थी। Now let me tell you the power of the godly family. अभी एक पवित्र परिवार, तो उनका जो भक्त परिवार का देखो सामर्थ कैसा Jonathan है। got married. They both were Christians. जोनाथन के पास विवाह होता है जो दोनों जो है मसीह में है। Their descendants were 1,394. देखो उनकी जो वंशावली थी 1394 1,394 descendants. यानी उनके जो वंशावली थी वो 1394। Hallelujah. And 294 out of that college graduates. 294 तो है ग्रेजुएट्स थे कॉलेज के। Out of that 13 college presidents. उसमें से 13 कॉलेज के प्रेसिडेंट थे Out of that 30 judges were there. और उसमें से जज लोग थे And one dean of the law school. और एक स्कूल का डीन बना 80 held public offices. और 80 लोगों जो है जो पब्लिक का सामाजिक का सेवा कर रहे थे 65 hold college professors. और 65 जो थे वो कॉलेज के प्रोफेसर थे 75 were officers in the military. 75 लोग जो है मिलिट्री के ऑफिसर लोग And थे 100 were well-known missionaries. 100 तो अच्छे अच्छे मिशनरी बने And there were 100 lawyers in this generation. और उसके पीढ़ी में 100 Now listen. लॉयर लोग थे And out of this, इसमें से 3 people were US senators. और 3 लोग जो थे वो यूएस के सेनेटर में थे 3 people were state governors. उसमें से 3 जन जो थे वो स्टेट के गवर्नर Out थे of that 3 mayors of the largest cities. 3 जो है बड़े बड़े शहरों के मेयर लोग थे Out of that, one was having the holds on the US treasury. और उसमें से एक तो यूएस का जो ट्रेजरी था उसमें बड़ा उसका पद था He was he was the head of that. उसका वो मुख्य था And lastly, one was the vice president of the United States. और अंत में एक तो प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स Now this is called godly family. इसे कहते हैं हम एक भक्त परिवार Not one descendant from Jonathan Edwards was a liability to government. देखो योनाथन का जो वंशावली थी उसमें से एक भी व्यक्ति सरकार के लिए कोई भी एक लायबिलिटी नहीं बनी या उसके लिए खर्च नहीं हुआ Are you getting this teaching? The power of generational curses. देखो ये सामर्थ्य जो वंशावली के श्रापों You know how it comes? कैसा आता है It comes when ungodly जब family. परिवार जो है भक्त परिवार नहीं The है blessings comes when you have a godly family. आशीष कब आती है जब एक परिवार भक्त परिवार बनता So है none of the descendants of Edwards देखो एडवर्ड का एक भी वंशावली family was a liability to the government. गवर्नमेंट के लिए कभी भी एक ऐसा देयता नहीं Now बना listen, if you follow God, अगर आप प्रभु के पीछे चलोगे you will be serving Him. तो उसकी सेवा You will करोगे be praying. तो तुम प्रार्थना करते You're हो living in the Word, तुम वचन में जियोगे staying committed to the Lord. प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध Then रहोगे your children and your grandchildren are going to grow up in serving the Lord. तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे नाते पोते जो प्रभु की सेवा करेंगे और उसमें बढ़ेंगे Now read Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28. आइए व्यवस्था विवरण 11 पढ़ेंगे Oh, come on somebody. Hallelujah. Your curse is broken tonight. और आज रात को किसी का तो भी श्राप God उठ रहा will है change your DNA and your legacy. प्रभु तुम्हारे डीएनए बढ़ेंगे और तुम्हारे विरासत को You भी। will leave the legacy for your children. तुम्हारे बच्चों के लिए तुम जरूर विरासत Now छोड़ोगे listen, verse 26 of 11 Deuteronomy. व्यवस्था विवरण का 11:26 Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you to do this day, and a curse, if you will not obey the commandments of the Lord your God. सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को
जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष बनेगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे ही सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। Now listen, this evening God has set before you a blessing and a curse. तो आज की शाम प्रभु ने तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रखी हुई है। Now listen, the second thing. If you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ मानो। Okay, 28. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God. तो मैं तुम्हें तो तुम पर आशीष होगी और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम पर श्राप पड़ेगी। That is how the scripture says. वचन ऐसा कहता है। You know, if you read in 28th chapter of Deuteronomy, verse 1 and 2. अगर तुम व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय 1 और 2 पढ़ोगे। It shall come to pass if thou shalt not hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe and to do all his commandments which I command you this day. और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। And the Lord thy God will set thee on high. Say with me, high. Above all nations of the earth, and all this blessing shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy फिर God. अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगी। Hallelujah. So there are lot of blessings till verse 15. अगर फिर 15 तक आगे पढ़ोगे तो बहुत सारे आशीषें So लिखे I हैं। will talk to you all those things later, step by step. बाद में ये सारी बातें एक एक करके मैं सिखाऊंगा। Now listen, an uncleansed iniquity देखो एक अधर्म जो अशुद्ध है that increases from strength one generation to the next generation, देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो बढ़ता जाता है affecting the members of the family. तो वो हर एक परिवार को पर जो है अफेक्ट करता है या प्रभाव डालता है। All who come in relationship with the family. जो कोई भी इस परिवार के रिश्ते संबंध में जुड़ जाता है। Okay, now you understood. Step by step I'm taking you. अभी मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके तुम्हें ले रहा हूँ। The first thing I told you need to enjoy the Abraham's blessing. How? तो पहले बात तो मैं तुम्हें बताया था कि तुम्हें अब्राहम की आशीषों को आनंद उठाना है। It is through Jesus Christ. कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। Through Jesus Christ. यीशु के द्वारा। Putting our faith. हमारे विश्वास We को डालकर receive the promise of the Spirit. तो आत्मा की जो वादा है वो हम पाते हैं। That we will receive the blessings of Abraham. ताकि हम अब्राहम के आशीषों को पाएं। That means Abraham never lived under curse. यानी अब्राहम श्राप के नीचे He नहीं was रहा, under the blessings of God. वो प्रभु के आशीषों में रहा। Now what is a curse? तो ये श्राप है I क्या? told you what is curse. मैंने बताया तुम्हें कि श्राप क्या Anything है। that is not a blessing is a curse. जो भी आशीष नहीं है वो श्राप है। Hallelujah. And then I told you how the curse comes. तो फिर मैंने तुम्हें बताया था कि ये श्राप आता The कैसे cause है। of a curse. ये श्राप आने का कारण क्या है? Idolatry मूर्ति पूजा and the witchcraft. और टोना। The consequence of the idolatry and the witchcraft. और ये टोना और जादू का जो परिणाम क्या है? You defile yourself and the Lord is angry with you. और फिर अपने आप को तुम अशुद्ध करते हो और प्रभु उससे नाराज होता Now there I want to bring a test for you this. है। चालू है तो अभी मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगा। Now I want to know whether you are affected by a generational curse. तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम कोई वंशावली के श्राप से ग्रस्त हो? I gave the example of Max and his wife. तो मैंने तुम्हें उदाहरण दिया था मैक्स और उसकी And I पत्नी gave का। the example of Jonathan Edwards and his wife. जोनाथन एडवर्ड और उसकी पत्नी का उदाहरण दिया Ungodly था। family, godly family. जो एक भक्त परिवार, नास्तिक One परिवार is का। atheist, one who believed in Christ. One is atheist and one who believed in Christ. एक नास्तिक और एक प्रभु में विश्वास करने And वाला। how their descendants. और फिर उनके वंशावली। You need to understand their descendant finish in 560. और तुम सोच सकते हो The कि atheist. जो नास्तिक था उसके जो वंशावली थे वो 560 पीढ़ी में खत्म। But Jonathan Edwards' blessings were 1394. लेकिन जोनाथन एडवर्ड्स के जो वंशावली थे वो 1394 तक Now,
बढ़ती गई। Now I want everyone to walk in the blessing and leave the legacy of blessings to your children. मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस आशीषों में चले और तुम अपने बच्चों के लिए ये विरासत में छोड़े इन आशीषों को। Now I'll be putting 8 questions to you tonight. आज रात को तुम्हारे सामने 8 सवाल डालूंगा। You know, if anybody is under a generational curse, अगर कोई भी एक वंशावली के श्राप में है, or you're affected by a generational curse, अभी तुम्हारे ऊपर कोई भी पीढ़ियों से आने वाले श्राप से ग्रस्त हो, if you answer this following question, अगर तुम ये प्रश्नों का जो पासवान दे रहे हो उनका उत्तर दे सकते you हो, will understand तुम समझ पाओगे whether your past generations have left the legacy to your life. तो तुम जान पाओगे कि तुम्हारे पिछले जो पीढ़ी थे बाप दादों के, क्या उन्होंने ये विरासत में तुम्हें छोड़ी है क्या? Okay, number 1, are you ready for the test tonight? तो क्या आप लोग तैयार हैं इस टेस्ट के लिए, परीक्षा के So लिए? this is a life-changing seminar. तो ये जीवन को बदलने वाला सेमिनार है। Hallelujah. Test number 1. तो पहला टेस्ट, Okay. Do you have a pattern of constant failure? क्या एक ऐसा तुम्हारे जीवन में एक हो रहा है कि लगातार तुम्हारे जीवन में तुम हार को महसूस कर रहे हो? Every time you do something, you have a failure. हर बार तुम कुछ कर रहे हो और उसमें तुम हार You're महसूस not करते हो। successful in life. जीवन में बिल्कुल You may be सक्सेसफुल नहीं young, हो। you may be old, or whatever it is. तुम शायद जवान होगे या बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, जो भी है। You know, I study, but I'm not successful. पढ़ाई करता हूँ लेकिन उसमें मुझे सफलता I've नहीं है। studied well. I have a degree, मेरे पास डिग्री भी, अच्छी पढ़ाई but की my है, study was incomplete. I'm intelligent. मैं बहुत होशियार हूँ पढ़ाई में, लेकिन मेरी जो पढ़ाई है वो पूर्ण नहीं है। The pattern of constant failure in every area of your life. तो निरंतर ये लगातार तुम्हारे जीवन में तुम ये असफलता को If महसूस you're कर रहे such हो। person, you write down and tick it there, yes. अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो तो इस वर्ड लिखो और वहाँ पे टिक मार्क करो। I hope you have a pen and a notebook. आशा रखते हैं कि सबके पास पेन और नोटबुक है। Okay, number 2, test number 2. अभी दूसरा टेस्ट, We are checking whether you are affected by generational curses. अब हम ये बात को जांच रहे हैं क्या तुम वंशावली से आने वाले श्रापों से ग्रस्त हो या नहीं। Because test number 2, sorry. दूसरा अभी परीक्षा, Do you have a history of untimely deaths and suicides, or a large number of people who have died prematurely in your families? क्या तुम्हारे परिवार में एक ऐसा इतिहास है कि लोग अपने समय से पहले बहुत ही कम उम्र में मर चुके हैं? Do you have a history? क्या तुम्हारे परिवार में ऐसा कुछ इतिहास है लोगों का जो तुम्हारे वंशावली में untimely death जिनका मृत्यु समय से पहला हुआ है and suicides? या मृत्यु या आत्महत्या की है, Large number of people have died before the time, premature death. और परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे अपने समय के पहले ही बहुत कम उम्र में मर चुके हैं। You need to check this one. ये बात तुम्हें जांचना जरूरी If है। it is yes, अगर ये हाँ है you are under a generational curse. तो फिर तुम वंशावली के श्राप में हो। Test number 3. तो तीसरा टेस्ट अभी लेंगे। Do you exhibit a high level of anger? क्या तुम्हारे अंदर एक बड़ा गुस्सा है? High level of anger. एक जो गुस्सा का जो लेवल है वो बहुत बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ है? Pastor, some people they say, I can't stand before his anger. Huh? कुछ लोग कहते हैं कि पासवान उसका गुस्से का मैं के सामने I have heard when people they cannot stand before God. मैंने सुना है कि लोग प्रभु के सामने नहीं खड़े रह सकते। They can't stand before the anger. कुछ लोग हैं जो गुस्से का सामना नहीं कर सकते। कई लोगों का गुस्सा, if a person is exhibiting a high level of anger, is under the generational curse. अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा अपने जीवन में एक उनको एक बड़ा गुस्सा उनके जीवन में गुस्सा आता है तो यानी वो श्राप के अंदर श्राप में ग्रस्त है। Okay, test number 4. अभी चौथा टेस्ट, Okay, do you have a high record of accidents or accidents that are unusual in nature? Do you have high record of accidents? क्या तुम्हारे पास हाई रिकॉर्ड है एक्सीडेंट का? तुम्हारे परिवार में बहुतों का दुर्घटना से कोई मरे हैं? ज्यादातर मैं ऑनियन काट रहा था, बार बार मैं उंगली काटता, कांदा काट रहे थे तो बार बार उंगली मैं चल कटती के है। जा रहा था, मेरा उंगली को लगता है।
चल के जा रहा तो कहीं पर लग जाता You're है। going आराम से. But if you have that high level of records of accident constant, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। accident that are unusual in nature. ये एक दुर्घटना ऐसी है जो होनी नहीं चाहिए थी, एकदम अचानक हो रहा है। I was sitting, twist हो गया मेरा हाथ. अचानक बैठे बैठे कुछ हाथ मुड़ गया, Suddenly ये देखो मरोड़ finger गया, break हो गया. तो अचानक उंगली टूट जाती है If या you कुछ have- भी होता है दुर्घटना। If you have that record of accident unusual in nature, यानी ऐसी कोई अगर दुर्घटना हो रही तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे परिवार के वंशों में किसी का, तो फिर तुम्हें परखना you है। are under a generational curse. यानी तुम उस पीढ़ी के आने वाले श्राप से भी ग्रस्त हो। Test number 5. अभी 5वां टेस्ट, Do you have a history of abuse such as physical, emotional or sexual? अभी क्या तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंशावली में एक ऐसा कोई शारीरिक शोषण हुआ है या Physical. मानसिक रीति से शोषण अत्याचार। हुआ है, अत्याचार हुआ है या भावनात्मक रूप से अत्याचार हुआ Or है? do you have a history? I'm talking about your history of abuse. अभी मैं तुम्हारे जीवन में एक शोषण के विषय में पूछ रहा You हूँ। know, long back, there was a man of God who came to me. और बहुत लंबे सर पहले एक प्रभु का दास मेरे पास आया You था। know, he had a sister उसकी एक बहन थी, somewhere in the village. बहन गांव में She थी, was 14 years old. वो 14 साल की थी। She was abused physically. तो शारीरिक रूप से शारीरिक शोषण उसके साथ She हुआ was था abused emotionally. और उसने भावनात्मक रूप से भी उसको And सताया she गया था, was शोषण हुआ। abused sexually by her own uncle. Can you believe that? और उसके खुद के अंकल ने उसे उसके साथ में जो है सेक्सुअली भी सताया So उसे। we prayed for her, broke the bondage. Now she's married, having 2 kids. अभी फिर हमने उसके लिए प्रार्थना की और सब उसका बंधन तोड़ गया। अभी So उसके 2 बच्चे when भी you हैं। study the history, they have the history. अगर किसी का इतिहास ऐसा अभी- स्टडी करोगे, परखोगे, जानोगे तो पता History चलेगा। of abuse, यानी वो शोषण हुआ है, physically, emotionally, or sexual. यानी शारीरिक रूप से हो सकता है, भावनात्मक रूप से या यौन रूप से। You know, you need to check this one. इस बात को तुम्हें जांचना If है। that is the constant on your life, अगर बार बार ये तुम्हारे जीवन some में हुआ people they है, get the bad dreams about because somebody is abused in the family, they get the bad dreams. They are under the generational curse. कुछ लोग हैं उन्हें बुरे सपने आते हैं उन चीज़ों के बारे में लगातार, क्योंकि उनके परिवार में किसी के साथ में ये यौन बातें हुई थी, ये शोषण हुआ था, इसके And- कारण उन्हें वो सपने आते हैं। And also, if you notice, if your children are going physically, emotionally, or sexually attracted for this abuse, that means they are under generational curse. तुम्हें ये भी जांचना जरूरी है, अगर तुम्हारे खुद के जो बच्चे हैं अगर वो इन सारे शारीरिक या यौन या शोषण से जो है आकर्षित हो जाते, तो तुम्हें ध्यान देना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। Every time we are talking on demons, right? हमेशा हम दुष्ट आत्मा के बारे So में बोल we are रहे थे। going to cast out the generational legacy of the demon that has brought the sin in Jesus' name tonight. अभी जो पीढ़ी से आने वाले ये जो ये है लेगेसी है, यानी विरासत में आई हुई जो पाप है, उसको हम निपटेंगे। Number 6, test number 6. Do you have a history of chronic illness? क्या तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ ऐतिहासिक बीमारी है जो लगातार बार बार वही बार होता रह रहा है, तुम्हारे परिवार में होता like है? this, for example, उदाहरण पे repeated colds, सर्दी long, जो बार-बार होती है। long term health problems, या तो समस्या हमेशा सेहत में कुछ समस्या है, asthma, अस्थमा, allergy. ये कोई एलर्जी है, ऐसी कोई पुरानी बीमारी है जो बार बार जो Chronic है illness. यानी वो होते रहते हैं। There are so many chronic illness. यानी वो जो है ये जो क्रोनिक इलनेस बोलता है पुरानी बीमारी, यानी ये वंश से आ रही है, वंशावली से आ रही है। You need to understand this. इसे तुम्हें समझना है, You need to break this bondage. इस बंधन को तुम्हें तोड़ना जरूरी है। Okay. Number 7, test number 7. 7वां टेस्ट, Do you have a history of mental illness? मानसिक बीमारी का ऐसा कोई इतिहास है तुम्हारे परिवार में That may have progressed through generations. जो पूरे पीढ़ियों से जो है वंशावलियों से आ रहा है, एक Mental पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, illness. Like, doubting spirit. यानी शक करने की आत्मा। Hallelujah. There are so many mental illness today. I can't explain to you all.
तो इतने सारे मानसिक स्थिति है लोगों के जीवन में, हम बोल नहीं सकते. restlessness. व्याकुलता, They don't have peace at all. उनको बिल्कुल शांति नहीं है. Some people, he is born restless. अरे ये जन्मा ही ऐसा व्याकुल. Somebody has left the legacy, no? किसी ने तो ये विरासत में छोड़ कर So गया that है. mental illness is a legacy left by your great grandfathers. तो ये mothers. मानसिक जो स्थिति है ना, वो जो बीमारी है, वो कोई तो तुम्हारे दादा दादा परदादा कोई तो छोड़कर Some चला गया. people, they don't have sleep in their life. कोई लोग हैं जो जिनको नींद नहीं आती है. See, chronic diseases, heart attacks, heart failure, cancer, TB, these are all chronic diseases, generation from generation. देखो ये सारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है. हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कैंसर, टीबी. And I want to tell you, mental illness. अभी मैं बताना चाहता कि मानसिक बीमारी. No, the last one, the last test for you tonight. आज रात के लिए अंतिम टेस्ट. You need to understand, are you affected by a generational curse through this? तुम्हें ये परखना जरूरी है, क्या तुम्हारे ऊपर कोई पीढ़ी से आने वाले श्राप से तुम ग्रस्त हो. If anyone exhibit any of this personality or behaviors, what I'm going to tell you now. अभी तुम में से कोई भी कि जिसके अंदर अगर ये सारे पर्सनालिटी या स्वभाव है. High control. High. You have a high figure of control. तुम सब चीज को अपने ही नियंत्रण में लेना चाहते हो. I, me, myself, everything control. पूरा चीज अपने नियंत्रण में. Manipulation. हेर फेर करने की आदत. Addiction. कोई बुरी लालसें, आदतें. Codependency. दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भरित रहना. Depression is a curse. डिप्रेशन वो एक श्राप है. Unforgiveness is a curse. क्षमा नहीं करना वो एक श्राप है. Or social isolation is a curse. दूसरे सामाजिक लोगों से नहीं मिलना है, अकेला रहना वो एक श्राप है. I will not leave the house and go and mingle with anybody. Even anybody comes to us, you are inside the house. That is a curse. अगर कोई आए मिलने के लिए तो भी बाहर नहीं निकलते हो, घर में ही बैठा रहूंगा, बाहर किसी से मिलने नहीं जाऊंगा, तो एक श्राप है. Check these behaviors. इन स्वभावों को चेक करें. Behavior number 1, eye control. पहला क्या है? आंखों से नियंत्रण. हाई कंट्रोल. बहुत जो दूसरों को अपने काबू में चलाना. Personality only will control everybody. यानी तुम्हारा जो पर्सनालिटी है वो सब लोगों को अपने काबू में लेता है. Manipulation. हेर फेर की बात करना. Very difficult to handle the manipulating people. जो लोग हेर फेर करते हैं, हेर फेर They की can बातें do it, उन्हें but they संभालना manipulate. वो लोग कर सकते हैं लेकिन वो They मैनिपुलेट. can help, but they manipulate. I can't do वो it. सब सहायता कर सकते हैं They लेकिन give वो हेर reasons. फेर- I'm busy. वो हमेशा कारण दिखाते कि हम बहुत That means व्यस्त हैं. you are under a curse. उसका मतलब है तुम श्राप If में you are हो. not helpful but you are manipulating after God-given gift, that means you are under generational curse. यानी अगर प्रभु ने तुम्हें वो गुण दिया है और तुम कर सकते हो सहायता, फिर भी नहीं करो, हेर फेर करो, यानी तुम एक श्राप के अंदर हो. Other thing is addictions. जो भी कोई एडिक्शन. मेरा बाप बीड़ी पीता था, मैं भी पीता हूँ बीड़ी. बाप बीड़ी पी रहा था तो मैं भी पीता हूँ. मेरा बाप पीता था, मैं भी पीता हूँ. बाप शराब पी रहे थे तो मैं भी शराब I don't पीता know हूँ. how it came, but my whole family is a drunkard family. मुझे पता नहीं कैसे आया लेकिन मेरा पूरा परिवार में सब शराब पीते हैं. I know a family. मैं एक परिवार को जानता हूँ. Every day they want wine. उनको रोज वाइन चाहिए. You know, they called me one day to their house. एक दिन उनके घर में मुझे बुलाया. They never offered me coffee. कॉफी नहीं दिया. They said, which brand you will drink? पूछा कौन सा ब्रांड पियोगे. I said, brew. मैंने What? कहा ब्रू. No, I'm talking about wine. नहीं मैं वाइन के बारे में पूछ रहा I हूँ. said, from great grandfathers we have this custom, they're saying. वो कहते कि परदादों से है ये कष्ट. Addictions. और ये एडिक्शन है. Addiction ये can be anything. I'm not mentioning everything. अभी ये जो एडिक्शन है, ये बुरी आदतें हैं, वो जो है मैं कुछ भी हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ. Codependency. दूसरों के ऊपर निर्भरित रहना. Always, even going to buy one bhaji or depending on your neighbor. एक भाजी लेने को भी जाने को तो पड़ोसी के ऊपर निर्भरित हो. दूध लाने के हाथे क्या जाए. दूध लाने जाओगे तो किसी को पूछोगे मेरे साथ आते हैं क्या. Codependency is a curse. You need to be independent. You have to live with God. तो फिर दूसरों के तुम्हें जो है दूसरों के ऊपर निर्भरित नहीं रहना, प्रभु के ऊपर निर्भरित होना जरूरी है. Okay, depression. अभी डिप्रेशन. You think depression comes from somebody? No, that is a legacy that somebody has left as a property for your life. तो तुम्हें लगता है कि डिप्रेशन जो है वो ऐसे ही आती है कि नहीं, वो किसी ने तुम्हें विरासत में परिवार के किसी सदस्य ने रखा हुआ, इसलिए वो आई है. Hallelujah. Unforgiveness.
अक्षमापन, क्षमा नहीं करने का। I have spoken a lot of things about unforgiveness. And क्षमापन now के you बारे में see, मैंने बहुत कुछ बताया है। unforgiveness comes under the curse now. If you अभी don't forgive. अभी देखा, अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो वो श्राप के अंदर You आता are है, living still under a severe curse. यानी तो एक बड़े श्राप के अंदर तुम अभी हो। Social isolation. अपने आप को समाज से अलग रखना। You give reasons and avoid to come to the group. यानी तुम जो है कारण देते हो, तुम अकेला रहना, एकांत में रहना Now listen, पसंद करते हो। if your answer is yes for all the 8 or one of it, अगर तुम्हारा उत्तर ये सारे 8 प्रश्नों के लिए हाँ या कोई एक के लिए भी अगर हाँ होगा, you could be under generational curse. यानी संभव है कि तुम वंशावली से आने वाले श्राप से ग्रस्त हो।